ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಈ ದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೂ ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ನೆನೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ದಿನಗಳು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹವಾಗಿದೆ. ಭವ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೊಂದು ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ, ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರ ಉದ್ಯಾನವನ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ತೋಟ, ಭಾರತ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ, ನಾಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಜನ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಾಳುವಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಏನಿದೆ, ಕಾನೂನನ್ನು ಯಾರು ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು, ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಯಾರು ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಈ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ. AK-47 ಅಂತಂದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ರಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯೋಗದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಸಿಖ್ ಬ್ರದರು ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹಕ್ಕು ದಿನಾಚರಣೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕು ಹೇಳಿ? ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಹಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಇವತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯೋಗದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀಡಿರುವ ಏನು ಮನವಿ ಇದೆ, ಆ ಮನವಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇ, ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮುಖಂಡರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಿ. I would like to inform you, it is the commitment of the Minorities Commission to protect your rights and also protect your institutions. Whenever any complaint is brought to the notice of the commission, we won't sit even for a minute. On the other day, our ex-member Srimati ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ SP-ಗೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನೀವು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಡನ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮೆಟಲ್ಡಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ಇದೆ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ವಿಧಾನ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಲೆಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಜೋರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆ ತರ ಇತ್ತು, ಮಾತನಾಡುವಂತ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜೋರು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಟೆರರ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಲ್ಯೂಟ್ಗಳು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಸಲ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳು ಪಡೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ. ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಈ ತರ ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. पावर किए हैं हमारे अजीम साहब ने, उनके साथ में रह के हम लोगों ने पूरा बेंगलुरु में, पूरा कर्नाटका में टीम बनाया हुआ है. करीबन 300-400 लोगों का टीम है और उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं. अभी हमारे को बहुत खुशी हुआ है कि हमारे को बोर्ड में भी जहीज लोगों को भी बोर्ड सेपरेट देने का बात चल रहा है. और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो गया है. हम लोग जाते हैं तो हमारे को सर्टिफिकेट्स नहीं बनता है. मैं चाहता हूँ हमारे अजीम साहब से कि उनको डायरेक्शंस दें और हमारे सर्टिफिकेट सब इजी से बने. और सिर्फ हम लोग जैन माइनॉरिटी के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट माइनॉरिटी के लिए काम करना चाहते हैं. और पूरा बेंगलोर में करीबन हिंदूज, मुसलमान, क्रिश्चियंस सब लोगों के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं. तो हम लोगों को पावर मिलेगा तो हम लोग और काम करेंगे. और मैं बोलता हूँ कि सबका साथ सबका विकास, सब माइनॉरिटी साथ में रहेंगे तो हम पूरा बाजी जीत सकते हैं और माइनॉरिटी के लिए काम कर सकते हैं. थैंक यू. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವಿಸಲು ಕೋರಿಕೆ. आज माइनॉरिटीज़ डे मनाया गया है 18 दिसंबर 2022 में, और आज यहाँ पर सभी कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हुए हैं. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सभी आए हैं. सब ने अपनी समस्याओं के बारे में आज हमारे अजीम साहब चेयरमैन को बताया है और काफ़ी समस्याओं का समाधान भी हुआ है. और एक समस्या हमारी जैन समाज की बहुत बड़ी थी, जो कि पर्यटन स्थल है हमारा झारखंड में, जो कि एक हमारा तीर्थ स्थल है, हमारे जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ पर लोग चलकर जाते हैं. 24 किलोमीटर है वो पहाड़ के ऊपर. उस पहाड़ को एक गवर्नमेंट ने पर्यटन स्थल बना दिया है. तो हम चाहते हैं कि उसको तीर्थ स्थल ही बना रहे, क्योंकि वो एक पवित्र स्थान है. वहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं. 24 तीर्थंकर है हमारे, 24 में 20 तीर्थंकर के वहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया है. तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे अजीम साहब को हमने आज मेमोरेंडम दिया है और उनको बताया है इस समस्या के बारे में. अजीम साहब ने हमने आश्वासन दिया है कि ये सेंटर तक इसकी आवाज़ पहुँचाऊँगा और मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा. धन्यवाद. पहली तो सी हमारी प्रॉब्लम कि जैसे हमारी मैरिजेज़ हैं, आपको याद होगा कि 1908 के अंदर, 1909 के अंदर जो सिख मैरिज एक्ट बना था, आनंद मैरिज एक्ट, लेकिन जो हमारी मैरिज रजिस्टर्ड हो रही थी, दे आर रजिस्टर्डिंग अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट. तो हमने सर को अपनी एप्लीकेशन दी थी कम्युनिटी की ओर से, जो उन्होंने रिकमेंडेशन कर दी है ऑलरेडी. एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की होप है कि हमें नेक्स्ट मंथ नहीं या विद इन ए फ्यू डेज हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और हमारी जो सिख मैरिजेज हैं इट विल बी रजिस्टर्ड अंडर द सिख मैरिज एक्ट. उसके बाद हमारी कुछ रिक्वेस्ट थी इनको कि सर एजुकेशन के लिए हमारी सिखों की सपोर्ट करो एंड अदर मैनर्स, सो दे आर हेल्पिंग फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिख कम्युनिटी एंड अदर मिनोरिटीज. एंड वी आर हार्टली थैंकफुल टू द मिनोरिटी कमीशन एज वेल एज द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, those who are supporting us. But we also requesting on the day of right, this is our right, kindly give us more and more, and we are so
एवरी माइनॉरिटी पर्सन शुड नॉट डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हमें हमारा हक दो, हमारे हक हमें मिलने ही चाहिए। दैट्स ऑल सर। आपका जो मैरिज एक्ट है वो तो नेशनल लेवल पे होना चाहिए। सर जो हमारा एक्ट है वो बिफोर 47 है। बर्मा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान उसके अंदर ऑलरेडी चल रहा है, बट गवर्नमेंट ने उसको अमेंडमेंट नहीं किया था। मनमोहन सिंह सरकार ने उसको पार्लियामेंट के अंदर अमेंड कर दिया था, तो कर्नाटका में भी पेंडिंग है, बाकी स्टेट में लगभग शुरू हो चुका है। तो अजीम सर ने हमारी जो रिकमेंडेशन थी गवर्नमेंट को भेज दिया है, तो वी हार्टली थैंक्स फॉर द सेम आल्सो गो टू रिकमेंडेड शॉर्टली इन कर्नाटका टू। Minorities Rights Day. As Indian and Indian Christian, we all has come today, the instruction given by our President Chairman, and we are happy today. And today I have just shared few things what the minorities are facing, the problems, and even the Christians are facing a persecution, especially the anti-conversion bill as passed in Karnataka. But we are not really happy on that bill which has passed, because we are living in the democratic country today. So whatever the bill has passed, that is against the constitution. But we requested already before passing the bill, and now also we plead the government, we need our rights. Christians or Muslims or Jainism or Buddhism, any religion, they have the rights to live on their own, because the country we live in, India, is a beautiful country where we live, and the culture and caste and creed, everything, we are different than the different other countries. So today my request is, in the special month of the December, as we celebrate the Christmas, and we need to have a freedom to celebrate the Christmas in peacefully, and we need to go for our carols, and we need to preach the love of Christ in this month. So I request everyone to live in peace and spread the love of Christ. Thank you very much. अक़लियती हुकूक़ के दिन के लिए तमाम अक़लियतों को जमा करके एक शानदार पैमाने में आज इस हाल में एक मुनक़द किया गया। मैं इस कामयाब इनेकाद पर अक़लियती हुकूक़ के दिन पर मैं अक़लियती चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी मरतबा इन्होंने चेयरमैन बना है, महज इसलिए नहीं कि उनका एक ज़ाती विकार है, महज इसलिए कि उन्होंने 24/7 काम कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह समझाया कि किस तरीके से उन्होंने अक़लियतों के मसाइल हल करने में कामयाबी हासिल की है, इसीलिए तो इस भवन के इफ्तिताह के मौके पर खुद चीफ मिनिस्टर ने इनकी तारीफ़ की, एक्सेलेंट वर्कर करके। आखिर हमारी कोई तारीफ़ इनके काबिल नहीं है, जबकि चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कमीशन में रहे हैं, आप मुतमईन हैं माइनॉरिटी कमीशन के काम से? माइनॉरिटी कमीशन के काम से अब हमारे को कुछ भी इत्तला नहीं थी। आज जब हाजिर होने के बाद जब इन्होंने समझाया कि किस तरीके से इन्होंने काम कर रहे हैं, किस अंदाज से इनके अक़लियतों के मसाइल उन्होंने हल किया है, आज ही हमें पता चला कि अब अजीम साहब किस अंदाज से काम कर रहे हैं कि वन मैन शो होते हुए भी इन्होंने जो कामयाबी हासिल की है और दोबारा चेयरमैन बनने के वास्ते चीफ मिनिस्टर ने इनको मौका दिया है, ये इस बात की दलील है कि ही इज़ ए वेरी हार्ड वर्कर, ही इज़ ए बेस्ट वर्कर। माइनॉरिटीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या उनके हुकूक उन्हें मिल रहे हैं? नहीं, कर्नाटक में हुकूक कोशिश तो जारी है, कोशिश तो जारी है। ये जो काम है ना, जब ये घर में रहे होते हैं, आप बता रहे थे कि नेपोलियन की मिसाल बता रहे थे कि कहाँ जब भी 24/7 जिस तरह नेपोलियन काम करता था उस तरीके से मैं काम का, और अल्लाह ताला इनकी ये उम्र में भी ये मौका, ये जज्बा दिया है, इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेशक आप माइनॉरिटीज़ के साथ कोई नाइंसाफ़ी वैसा महसूस कर रहे हैं कर्नाटक में? नहीं, माइनॉरिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, नहीं कर तुम नहीं, लेकिन इसके लिए इनकी जिद्दोजहद जारी है, इनको इल्ज़ाम नहीं दे सकते हम। तो इनकी कोशिश के लिए हम इनको सराहते हैं, और इनसे तलब करते हैं कि इसे बाकायदा पूरे मेंबरों के साथ एक टीम बनाकर अपनी जिम्मेदारी ज़रा थोड़ी सी कम कर लें, ताकि मेंबर्स भी अब पूरे जेलों को जाना है, जाते जाते हमारा अधूरा होगा काम। 2-3 जेलों को गए थे, वहाँ पे रमज़ान में मैं एक आखिरी इत्तला सर, अक़लियतों के सिलसिले में आखिरी जेलों के अंदर रमज़ान के महीने में जाकर रोज़ा, सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम करने का हमने किया था, आप भी करें करके एक इत्तला देता हूँ। इंशाअल्लाह रियासत कर्नाटक के तमाम माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के मेंबरान का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि 1992 18 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने ये एक रेजोल्यूशन पास किया। इसके पीछे
उनका उद्देश्य था कि माइनॉरिटीज़ जो हमारे पास कम संख्या में मुल्कों में भी रहते हैं, शहरों में रहते हैं और खरियों में भी रहते हैं, उनकी हिफाजत उस स्टेट की सरकार की जिम्मेदारी है। उनको सबको मेन स्ट्रीम को लेकर जाना है। जब तक वहाँ पे शांति बहाल नहीं होती, अमन बहाल नहीं होता और भाईचारगी नहीं होती, ये जो है तरक्की नहीं कर पाते। हम स्कैन करना पड़ेगा। ये आदमी गरीब है, बिलो पावर्टी लाइन है, इसको मकान देना है, वो पूछो या ना पूछो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उनके घर के दरवाजे पर जाए, ये तुम्हारे हुकूक हैं, तुमको मांगना पड़ेगा और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि देना पड़ेगा। तो ऐसा जो है बच्चों की पढ़ाई एजुकेशनली, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी तरह आज हम यहाँ पे माइनॉरिटीज़ राइट्स डे मनाया गया है। पूरे 6 कम्युनिटीज़ के भी लोग यहाँ पर आए हैं। क्रिश्चियंस फ्रेंड्स भी आए हैं, उनके बिशप भी आए हैं और उसके साथ साथ जो है बुद्धिस्ट गुरु आए हैं और जो है पारसी उनके लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो है जैन कम्युनिटी के लीडर्स हमारे साथ में हैं। हमको क्या करना है, हमारे राइट्स क्या हैं और उसके साथ साथ हमारी ड्यूटी क्या है। जैसा फंडामेंटल राइट्स हैं इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होते हैं। तो हमने उनको एक बात आज साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तान में सिर्फ हम नहीं, बाप दादा, हमारे परदादा यहाँ के बने पैदा हुए। ये पहले मालूम करो। जब तक तुम्हारा घर ये हमारे बाप ने बनाया, हमारे दादा ने बनाया, ये मालूम नहीं तो तुम्हारा हक जिता नहीं सकते। लेकिन क्या ये एक अफसोस की बात नहीं कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी आप कह रहे हैं कि हम यहाँ के हैं? देखो सर, क्या है, हम जो है माफ़ करना कुरान शरीफ पढ़ते हैं। हर मुसलमान को कुरान शरीफ के फंडामेंटल्स मालूम है, फिर भी दोहराया जाता है, भूल ना पाए। इसी तरह जो है हम जो है याद दिलाना होगा, तुम्हारे ये राइट्स हैं, तुम यहाँ ऐसा जाना होगा। अभी किसी घाट सेक्शन में ड्राइव कर रही हैं, दिस इज एन एक्सीडेंटल जोन, शार्प कर भी द हेड। ये काम को याद दिलाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। काम हो रहा है हिंदुस्तान में, नहीं हुआ बल्कि नहीं है। आज हमारे पास हाउसिंग भी मिले हैं, स्लम डेवलपमेंट भी हुए हैं और फार्मर्स को ज़मीन भी टेनेंसी एक्ट में मिली हुई है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे हमारे हक इग्नोर कर दिए गए। सर, गवर्नमेंट से क्या डिमांड है? क्या आप सीधा गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे माइनॉरिटीज़ के लिए, 6 कम्युनिटी जो है माइनॉरिटीज़ के, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या मुतालबा? देखिए, पहला जो है हम एक इम्पॉर्टेंट थिंग सरकार की नॉलेज में लाना चाहते हैं। द ड्यूटी ऑफ द माइनॉरिटीज कमीशन टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी। शांति बहाल रखो और जो गलत किया है उसको पनिश करो। इन्वेस्टिगेशन हमारे पास फेयर हो। किसी एक मामले में इनोसेंट को सज़ा नहीं होना चाहिए। एक कहावत है, लेट 1000 accused get acquittal but one innocent person should not be convicted। ये कानून है हमारा। ऐसा तो हमारी पुलिस भी अच्छी है, गवर्नमेंट भी अच्छे हैं, 1 or 2% थोड़ी भूल होती है। फिर भी जैसा मैंने आपको कहा कि जो है एक रिमाइंडर मैसेज देना है, तो ये मैसेज हम देना चाहेंगे। नंबर 2, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी करना है। तो हमारे पास ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, 6 कम्युनिटीज़, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसी, सिख कम्युनिटी के लोग हैं। उनके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं हम सरकार को तब तक मालूम करा रहे हैं। ये कम्युनिटी की भी देरी हम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, साल हो जाएंगे, मगर हमको ये उम्मीद है जितने भी प्रॉब्लम हम माइनॉरिटी कमीशन भेज रहे हैं, 50% प्रॉब्लम साल हो रहे हैं। हमें काम करने का तरीका बदल दिया है माइनॉरिटी कमीशन का, हमारा लेटर लिखने का तरीका बदल दिया, ऑफिसरों को बात करने का तरीका बदल दिया। अगर किसी का काम नहीं हुआ तो हमने नोटिस दे रहे हैं कि सरकारी ऑफिस, पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर हमारे सामने हाजिर हो और हमको बताए ये काम तुमने क्यों नहीं किया, ये केस क्यों तुमने रजिस्टर नहीं किया। ये पूछने की जिम्मेदारी हमको है।
और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, समझो कि तुम्हारा हुबली, तुम्हारा मैंगलोर, भटकल, यहाँ सब भी ये डेवलपमेंट के बारे में जो है हिसाब किताब लिया जा रहा है। वी आर रिव्यूइंग द 15 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके साथ मैंने नया मेथड कायम किया है। वो मेथड ये है कि पुलिस ऑफिसर की सभा बुला रहा हूँ मैं, बुलाकर जो है उनको हारमोनी कैसे मेंटेन की जाए। मैं एक अच्छा ऑफिसर हूँ, इन्वेस्टिगेशन भी सिखा रहा हूँ उनको, लाइन ऑर्डर कैसे मेंटेन किया वो भी सिखा रहा हूँ, और आखिरी में कह रहा हूँ तुम बेइंसाफी मत करो, ऊपर वाले को जवाब देना है। ये सारा काम कर रहा हूँ सर। इसलिए अल्लाह ने मेरे काम को पसंद किया और दूसरा टर्म दिया है, इतना ही बोल सकता। तो हम हमेशा लोगों के लिए हैं सर, गलती हमारे से नहीं हो रही है, मुझे उम्मीद है। तो आपके भी सहयोग की ज़रूरत है। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी नॉलेज को आती हैं वो मुझे सुना।